Hi friends, a very warm welcome to all of you on the platform of परीक्षा दोस्त। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है टी फ्रॉम आसाम। और जब भी हम असम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है टी की। तो चैप्टर में सबसे पहले तो ये डिस्कस हुआ कि टी आई कहाँ से। There are two legends. One is the Chinese legend and one is the Indian legend. According to the Chinese legend, tea was discovered by a Chinese emperor who always boiled water before drinking. Once, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. गलती से गिर गए पर स्वाद आया मजेदार. These were tea leaves that later became a popular beverage in China and rest of the world. And according to the Indian legend, a Buddhist ascetic, Bodhidharma, had cut off his eyelids because he felt very sleepy during meditation. उसको नींद आती थी तो उसने eyelids काट दिए. 10 tea plants grew out of these eyelids. The leaves of these plants banished sleep when drunk after putting them in hot water. तो जब भी हम ये पत्तियां पानी में डालते थे और उसे पीते थे तो नींद भाग जाती थी. Thus, tea is supposed to have been discovered by chance and was found as a deliciously flavored beverage that helped to put away sleep. नींद भगाने के काम आने लगी. Tea was drunk for the first time in China around 2700 BC, and tea traveled from China to Europe in the 16th century and was initially drunk over there as a medicine rather than a beverage. The author says that the Indian word like chai and chini have Chinese origin. तो चाइना से यूरोप कैसे आई, यूरोप से इंडिया कैसे आई? पहले मेडिसिन की तरह आई, फिर बेवरेज की तरह आई. कैसे ढूंढी गई? कोई कहता है चाइनीज ने ढूंढी एम्परर ने, कोई कहता है बोधिधर्मा ने ढूंढी. ठीक है, तो दोनों है, पर आजकल हमें तो चाय मिल रही है फर्स्ट क्लास पीने को. आगे चलते हैं. कहानी बताई उसके बाद टी गार्डन्स की. किसको कैरेक्टर्स को लेके, किन किन कैरेक्टर्स को? राजवीर और उसका फ्रेंड प्रांजल. दे वर कमिंग फ्रॉम देयर स्कूल इन दिल्ली. Pranjal and Rajveer got down at Meraini Junction. The final destination was Dekiabari Tea Gardens that were managed by Pranjal's father. तो इसका मतलब प्रांजल ने तो बहुत टी गार्डन्स देखे हुए थे क्योंकि उसके फादर उन्हें मैनेज करते थे. बाहर से कौन आ रहा था घूमने? राजवीर. इसीलिए दोनों का एटीट्यूड diametrically opposite था. The attitudes of the two boys were opposed to each other because the tea plantations and the view offered by them were a routine affair for Pranjal. उसके लिए routine था, whereas Rajveer found this scenic view as a novel and a rare experience. So he enjoyed the natural beauty of soft paddy fields, sea of tea bushes, tiny tea plants amid the tall sturdy trees. तो उसे क्या लगा राजवीर को कि देखिए कितना सुंदर है सब. क्या क्या? सॉफ्ट पैडी फील्ड्स, एक समुद्र जैसा था टी बुशेस का, छोटे छोटे टी प्लांट्स, किसके बीच? लंबे लंबे ट्रीज के बीच. और सबसे पीछे क्या था? डेंसली वुडेड हिल्स. लेकिन प्रांजल को इसमें इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसके लिए रेगुलर अफेयर था एंड ही रिमेन एनग्रॉस्ड इन हिज डिटेक्टिव नॉवल. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ उतरे, कहाँ जाना था, दोनों बॉयज के एटीट्यूड में फर्क क्यों था और दोनों क्या कर रहे थे. तो फिर कहाँ जा रहे थे? देकियाबारी टी स्टेट. तो पता होना चाहिए ना कितनी दूर थी. इट वॉज एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम द मेराइनी जंक्शन. It was off the main road and could be reached only after crossing a castle bridge. It had acres of tea bushes on either side of the gravel road. The bushes were neatly pruned to the same height. एक ही हाइट के सबको काटा हुआ था. And groups of tea pluckers with bamboo buckets on their backs were plucking the newly sprouted leaves. तो वहाँ का नजारा जो है बड़े आराम से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई भी टी गार्डन है तो उसमें क्या चल रहा होगा, वो कैसा दिख रहा होगा. तो फिर वापस आए हम राजवीर पे. राजवीर जो है बहुत उसमें जिज्ञासा थी. He was an inquisitive boy who enjoyed learning new things. The excitement and inquisitiveness of the Rajveer tells us that he is a good pupil who does some self-study before learning anything new. पर हमें ये कैसे पता चला कि वो ऐसा था? He already had collected a lot of information about tea cultivation, including its sprouting period. तो उसने पहले ही कुछ होमवर्क किया हुआ था
पहले ही जानकारी लेके आया था टी कल्टीवेशन के बारे में, उसका स्प्राउटिंग पीरियड कब होता है ये सब उसने पढ़ा हुआ था। तो जैसे ही उसने बोला कि इट लास्टेड फ्रॉम मई टू जुलाई यील्डिंग द बेस्ट ट्री, तो जो मिस्टर बरुआ थे वो भी बहुत हैरान हो गए। इसी तरह प्रांजल के फादर भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्कूल बॉय इतना क्यूरियस होगा अबाउट द टी। तो ये सारी बातें बताती हैं कि राजवीर जो है इंक्विजिटिव भी था और हार्ड वर्किंग भी था, सेल्फ स्टडी करके वो आया था। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि एक तो हमने पढ़ा आसाम के बारे में, एक और मैं अभी वीडियो देने वाली हूँ कुर्ग के बारे में आपको, और हमने गोवा के बारे में भी पढ़ा। तो हमने ये देखा कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, और ये जो कुर्ग और आसाम है, both these places are abundant in greenery and they have huge stretches of plantations. The chief crop in each of these places is a beverage popular for its flavor. बिल्कुल सही है, असम हमें टी देती है और कुर्ग हमें कॉफी देती है। They are both delightful places for tourists. दोनों ही इतने खूबसूरत हैं। They offer a lovely glimpse of the soul and heart of India. However, the difference in the geographical location of Coorg and Assam lent some differences to the types of vegetations found in these places. वहाँ के वातावरण के हिसाब से, उनकी geographic location के हिसाब से जो vegetation है वो अलग है, क्योंकि कुर्ग में क्या है, evergreen rain forest है, और असम में क्या है, densely wooded hills हैं। लेकिन चाहे हम गोवन ब्रेड की बात करें, हम कुर्ग की कल्चर की बात करें या आसाम टी की बात करें, एक बात तो कॉमन है, दे ऑल हैव फॉरेन ओरिजिन्स बट हैव एसिमिलेटेड इनटू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो अब हमने गोवा भी पढ़ लिया, आसाम भी पढ़ लिया, कुर्ग हम बस अभी पढ़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हमने ध्यान से देख लिए कि आपको टी स्टेट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, राजवीर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उनके एटीट्यूड्स में फर्क क्यों था, वहाँ की ब्यूटी जो है आसाम की वो कैसी नजर आ रही थी। ठीक है, और आपके जो इंडियन जो ओरिजिन है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो हिस्ट्री क्या है, लोग राजवीर से सरप्राइज क्यों हुए, लोग कहाँ पे उतरे, कहाँ को गए, ये सारी चीजें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। दोनों के एटीट्यूड्स में जो कंपैरिजन है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये सारा पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत छोटा सा है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ इसे लर्न कर लीजिए। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो डालते ही मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।